is a point of confidence. Isn't it, parents? So I request everyone to keep applauding for the girl. Each child has their own talent. हर बच्चा अपने हिसाब से परफॉर्म करता है और अगर हम किसी को देख के कंपेयर करते हैं तो आई थिंक वी आर रॉन्ग और अवर हमारे पुराने दिन भी क्या दिन थे, ऑफिस भी, दोस्ती भी। वो प्रकृति है, वो प्रकृति आपको कभी भी कमज़ोर नहीं बनाती, प्रकृति आपको हमेशा ही अच्छा ही रखती है। लेकिन हम इंसान जो है अपनी विचारधारा या अपनी सोच की वजह से जो है ना थोड़ा सा इस फैक्टर को भी लेके थोड़ा सा। गाइस वेलकम टू माय चैनल खबरें अब तक। आज है 31 जुलाई और आज हम स्कूल में एक बच्चों के कार्यक्रम में जा रहे हैं, अपनी भांजी के स्कूल में। और देख के आते हैं कैसा है, क्या इवेंट है उनका। कुछ अच्छा इवेंट स्कूल वालों ने ऑर्गेनाइज़ कर रखा है, तो जैसा एक्सपीरियंस होगा मैं आपको भी शेयर करता हूँ। और क्लिप्स क्या है, उन किस तरीके की चीज़ें वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो स्टे ट्यून, बने रहो भाई, फिर बताना मुझे कैसा लगा मेरा व्लॉग ये, ठीक है। चलो मैं निकलता हूँ अभी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया हूँ। मैं थोड़ा सा देर साथ सो के उठा हूँ रात में, थोड़ा सा ऑफिस वर्क की वजह से। बस मुझे भागना है, कॉल भी आ रही है वहाँ से स्कूल से कि वहाँ पे सब रेडी हो गए, सब ऑन टाइम सब पहुँच रहे हैं साथ में। तो चलो सर, क्योंकि आगे पहुँच के आगे की सीट ग्रैब करनी होती है, तो नहीं तो बहुत भीड़ होती है। पेरेंट्स में सब रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से वीडियो भी नहीं बन पाता है। चलता हूँ, जल्दी से पहुँचता हूँ, फिर आपको अपडेट देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें आगे। चलो Good morning everyone. I am Dr. Bhaskar of Class 2A, your today's anchor. A warm welcome to our wonderful celebration. Let's begin with smiles, music and happiness. With smile so bright and heart so free. Let's welcome all with joy and glee. I request the parents to please appreciate the child. I know Paki is too young, but still coming on the stage, speaking in front of so much of crowd is a point of confidence. Isn't it, parents? So I request everyone to keep applauding for the girl. So what better way to begin today's program than with the joyful smiles and graceful movement of our little tiny stars. With colorful costumes, innocent expressions and boundless enthusiasm, our adorable children of UKGB are all set to welcome you through a delightful dance performance. So ladies and gentlemen, let's explore our tiny programmers with a huge round of applause as they present the welcome dance for you. Are excited to welcome you with love, energy and beautiful smiles. Let's celebrate this special moment together. Thank you. Today is a beautiful day filled with happiness, smiles and wonderful performances. We hope you enjoy every moment with us. Thank you. Now with great joy and excitement, we present our welcome dance. Please encourage our performers with your big smile and a huge round of applause. Thank you. Everyone, just look towards your right. Everyone, just look towards your right. आपके राइट साइड कौन बैठा है? और जो राइट साइड बैठे हैं वो अपने लेफ्ट साइड देखेंगे और एक दूसरे को देख के बड़ी सी स्माइल देंगे. It is just a welcome smile. So these are some small activities we keep on doing in the classes also, जिससे बच्चे बहुत enjoy करते हैं. This is something we should always keep in mind. Each child is different. Each child has their own talent. हर बच्चा अपने हिसाब से परफॉर्म करता है और अगर हम किसी को देख के कंपेयर करते हैं तो आई थिंक वी आर रॉन्ग और अवर पार्ट. यस, सो वी आर हियर टू एंजॉय, टू सी व्हाट आवर स्टूडेंट्स हैव लर्न्ड एंड यस ऑलवेज वी हैव टू फाइंड समथिंग कि उसमें और बेटर क्या कर सकते हैं. यस, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट प्रोग्राम. Are you
park are all set to make us smile. Ready to clap and tap your feet. Are you ready to see funny faces? Happy cheers. Our little jokers are finally here. Please welcome the cheerful children of UKGA with their lovely joker dance. Shall we dance now? Yes, if you can't clap, clap please. Come on everyone, smile and enjoy our joker dance. Your choice. That what will you become in future? What is your dream? Our district magistrate. And really, dear parents, I asked her this question, what will you become in future? She quickly answered, a district magistrate. That means it is very clear in her mind what she has to become. So dreams have no limitations. Yes, there is no age. जब हम भी छोटे थे, तो we had different dreams. Sometimes we used to think हम teacher बन जाते हैं. If I'm good in dancing, I used to feel I can be a good dancer. Maybe शीशे के सामने थोड़ी एक्टिंग करना, मैं एक एक्टर भी बन सकती हूँ. Boys के लिए generally they are with new screws and nuts to open some machine, mechanic बन जाएंगे. So we have different dreams at different stages. Yes, Paki. So your dream is to become a district magistrate. Yeah. Okay. So, but aren't you too young for this? I may be young today, but our dreams are abundantly big. Okay, she's saying that I may be young, but dreams have nothing with the age. So the next program is just based on this. Age is not just a number. It is just any child can dream of anything. जो हम चाहते हैं वो हम बचपन में सोचते हैं. Slowly and steadily when we move forward, हम उसकी तरफ जाते रहते हैं और we change. Young star will be show that anything is possible. Please welcome. We are the students of class 2D. Today we are going to present a poem. Magic of love. See up. Come and see a brand new world is waiting for me. A brand new world waiting for me. Yes. Dada Dubai, Dubai, Mumbai, Dad. Have a great day. Oh, we are getting late. Let's go. Bye, Mom. Bye, Dad. वाह, हमारे पुराने दिन भी क्या दिन थे. ऑफिस भी, दोस्ती भी और जिंदगी भी. Those memories priceless. काश हम उन दिनों वापस जा पाते. ये रही इनकी मैजिकल टॉय शॉप. Wow, look at this toy shop. It is so beautiful. This is not an ordinary toy shop. Oh, did you see that? I think the toys are moving. Here every toys are special. When I ring my magical bell, then a beautiful fairy appears. Welcome my beautiful
Hello everyone, I am a magical fairy. Welcome to the magical toy shop, where every toy comes to life with a little magic. Now let's welcome our smart and amazing robots. They can walk, move and dance with laughter. Everyone, nowadays animals are facing great cruelty in our society. Humans have turned hunting and harming animals into a means of fulfilling their needs and at times even for entertainment. Every animal plays an important role in maintaining the balance of our environment. It is our responsibility to protect and care for them. With this important message, we, the students of class 2A, are going to present a dance drama titled Save Us, Save Life. We hope you will enjoy our presentation. Thank you. Thank you. भूल गया इंसान की वो पहले क्या था। भूल गया इंसान की भगवान ने उसे किस रूप में धरती पर भेजा था। सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। और अभी जो है स्कूल का आपने देखा होगा सारी वीडियो, सब कुछ स्पीच टीचर्स की सुनी होगी। और जो मेरी भांजी है उसका भी स्पीच बहुत अच्छा लगा था। मतलब वो एक क्या कह सकते हैं यार, ड्रीम्स कम ट्रू वाली चीज़ थी। और लिटरली मेरी मम्मी जो इनकी नानी है वो तो भाई रोने लगी थी। एक इमोशंस होता है ना हम इंडियंस फैमिलीज़ में, जब बच्चों का कॉन्फिडेंस एक स्पीकअप होता है, इतनी कम उम्र में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस ग्रेन अप होना और इस तरीके से मौके मिलना। हमें याद है मेरे टाइम पे तो शायद इतना वो नहीं था एक्सपोज़र, बट आजकल के बच्चों में बहुत अच्छा एक्सपोज़र है स्कूलों में। और बहुत अच्छी पेरेंटिंग भी हो रही है, बहुत अच्छी स्कूलों में टीचिंग भी हो रही है। स्कूल हमेशा, मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत एक सोच है, स्कूल हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल होनी चाहिए। वो अच्छा रहता है, उसमें बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा होता है और उसमें एक बच्चे के अंदर एक अच्छी कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो पाती है। एंड द थिंग इज़ कि इन बच्चों के कार्यक्रम में ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे लगता है मेरी उम्र के जितने लोग हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को भी समझ में आएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या सीखने को मिला मुझे। जैसे कि मैं चीज़ें मैं बताऊँ, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी थी इसमें जो बताई स्कूलों में सिखाई गई कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज का कभी भी ये मत सोचना चाहिए कि मैं इतनी एज हो गई है अब मैं क्या करूँ, ऐसा है वैसा है। क्योंकि एज के हिसाब से जो थॉट बनती है ना वो सोसाइटी बनाती है, आप प्रकृति नहीं बनाती है। नेचर आपको वैसा नहीं रखती है, सोसाइटी बनाती है आपके लिए एज फैक्टर जो है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सोसाइटी में रहते हो। इंडिया में रह रहे हो तो अलग सोसाइटी है, आउट ऑफ कंट्रीज जा रहे हो एक्सपोजर आपको अलग मिल रहा है। जैसे जो लोग बाहर भी जाते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ में, यूएस में, सेंट्रल एशियाज़ में, मिडिल ईस्ट में, वहाँ आपकी अलग अलग सोसाइटीज़ की अलग अलग कल्चर हैं एज को लेके। बट ओवरऑल एक सर्वोच्च जो कहते हैं ना कि एक ब्रह्मांड का जो सच है वो प्रकृति है। वो प्रकृति आपको कभी भी कमज़ोर नहीं बनाती, प्रकृति आपको हमेशा ही अच्छा ही रखती है। लेकिन हम इंसान जो है अपनी विचारधारा या अपनी सोच के वजह से जो है ना थोड़ा सा एज फैक्टर को भी लेके थोड़ा सा वो हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। बट मेरे हिसाब से एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपको ज़िंदगी में हंसमुख रहना चाहिए, एंजॉय करिए लाइफ को जितना हो सके। मतलब
अपने ज़िंदगी जितनी भी आपको मिली है जीने के लिए, प्रकृति ने जो दिया है आपको, उस प्रकृति के साथ उतना आनंद उठाइए। मतलब उतना आप ज़मीन से जुड़िए, उतनी चीज़ें आप एंजॉय करिए। क्योंकि एक बात है, असली खुशी जो दिल को और साउल को सेटिस्फाइड करती है, वो हमेशा हमेशा, मेरी बात याद रखना, वो प्रकृति नेचर से जुड़ी होती है। आर्टिफिशियल चीज़ों की खुशी जो होती है वो एक परमानेंट नहीं होता है, वो कभी ना कभी एक टाइम का प्लेजर होता है, उसके बाद फिर वो फेड ऑफ हो जाता है। बट जो नेचर की जो वेलनेस है, जो खुशी है, वो बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज़, एक पॉइंट और मेरे दिमाग में टीचर ने बताया कि अच्छी चीज़ थी, वो चीज़ मुझे भी लगी। 2 पॉइंट था, जैसे बच्चे बोल रहे थे, एक पोएम गा रहे हैं बच्चे साथ में, उसमें कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस वाकई बहुत अच्छा है भाई, गॉड गिफ्टेड है। कुछ बच्चों का क्या है, वो अभी सीख रहे हैं। कुछ बच्चे क्या है, वो बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मासूम से हैं। तो यूजुअली क्या होता है, किसी बच्चे की आवाज़ कम आती है, किसी बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी आती है, और किसी बच्चे की आवाज़ बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल आती है। बट क्या है, हम जब पेरेंट्स देख रहे होते हैं ना, देख के बड़े, किसी के भी पेरेंट्स देख रहे हो, अगर वो बच्चा ना भी बोल पा रहा हो, खड़ा भी अगर वहाँ पे, तो वो दिल से बड़ा गदगद होता है, तो वो भी तालियां बजाता है, अरे वाह मेरा बच्चा स्टेज पे आ गया, खड़ा होकर दिख रहा है, बोल रहा है। और सारे बच्चे हर तरीके से बोलते हैं। तो अब उसमें सोचो, जो बच्चे कमज़ोर हैं, मान लो नहीं बोल पा रहे हैं किसी वजह से, डरे हुए हैं, कमज़ोर भी नहीं बोलूँगा, ये मेरा वर्ड माफ़ करना गलत है, बट फर्स्ट सहमे हुए हैं, सीख रहे हैं, उसको लर्निंग प्रोसेस में। ये नेचर का एक अपना तरीका है। किसी किसी को नेचर बहुत जल्दी सिखाती है, किसी किसी को नेचर समय लेती है सिखाने में। हर किसी की नियति अलग है, हर किसी का एक फेट अलग होती है, किस्मत अलग होती है। तो अब उसमें क्या होता है, हम जितने भी बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उन बच्चों को जज नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप सोचो क्यों जज नहीं करते हैं। जज का मतलब ये नहीं कहते कि अरे यार ये तो मतलब ये नहीं कर पाएगा, अरे यार ये तो इसको देख के लगता है हाँ ये कर लेगा। जैसे हम बड़े लोग ना आपस में यूजुअली जज कर रहे होते हैं। मान लो कोई कहीं स्कूल में किसी कॉलेज में जा रहे हैं या किसी जॉब में बैठे हुए हैं, तो नीचे का स्टाफ बैठा हुआ, तो वो भी जज करेगा, अरे ये इनसे नहीं हो पाएगा, ये मैडम बहुत तेज़ है, अरे ये सर बहुत तेज़ हैं, ये बहुत कमज़ोर हैं, ये बहुत सीधे हैं, ये बहुत भोले हैं, मतलब दुनिया ये बहुत कनिंग है, ये वो ऐसे हैं ऐसे हैं। मतलब दुनिया जो है, हाँ, जो हम लोग की जो ये ज़माना चल रहा है, जो आजकल का समय चल रहा है, लोग क्या है, जज बहुत ज़्यादा करते हैं। जज नहीं करना चाहिए। यही चीज़ मैं आपको ये चीज़ मुझे आज सीखने को मिली, और मैं आपको भी अपनी तरफ से कन्वे कर रहा हूँ। ये अच्छी चीज़ है, होना भी यही चाहिए। जज कभी नहीं करना चाहिए किसी को लाइफ में। सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी किस्मत अलग होती है, सबका कॉन्फिडेंस जो है वो ऊपर वाला अलग बना के देता है। हर बंदा अपने आप में यूनिक है, चाहे वो बंदा हो चाहे वो बंदी हो। या ये मत लेना कि मैं कुछ मेल फीमेल अलग कर रहा हूँ, सबके अलग, सब एक जैसे होते हैं। तो जब हम बच्चों को जज नहीं करते, क्यों नहीं जज करते हैं, आपको माइंड पता है क्यों नहीं जज करते? क्योंकि दिमाग में ये आता है कि हाँ अरे बच्चा है, अभी सीख रहा है। मेरी बात को याद रखना, इस लाइन को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाना, सीख रहा है। ये जो लाइन है ना, ये नेचर की एक गिफ्टेड चीज़ है, सीख रहा है, ठीक है। नेचर, ये आपको नेचर में देखने को मिलेगा। अगर आप किसी जानवर के पास जाओगे तो उसको देखोगे चलने की कोशिश करता है। पेड़ के पास जाओगे तो पौधा लेके गमले में डालोगे, पानी डालोगे, मुरझाया रहेगा, उसको देखोगे धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। तो वो सीख रहा है। ये नेचर की थॉट है, सीख रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको अपने दिल और दिमाग में बैठानी चाहिए। जब कभी भी आपको ना सामने वाला अगर अपोज करता हूँ, मैं आपको एक बड़ा अच्छा वो बताता हूँ, अच्छी लगता है मुझे, मैं भी अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी होता रहता है अक्सर। मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ, मैं आप लोगों के जैसा हूँ। तो जब भी आपके साथ में, जब कहीं आप बाहर जाते हो, कहीं आपको कोई चैलेंज करता है या कहीं कोई ऐसी घटना होती है, XYZ कुछ भी हो रही हो, तो सामने वाले का मन हम लोग का उदास हो जाता है। अरे यार बताओ, ये भी मेरी ये भी ऐसा है वैसा है, ऐसा कर लिया इसने मेरे साथ, वैसा कर लिया। नहीं भाई, आप उसको ये सोच लो कि ठीक है, वो सीख रहा है, बस उसके दिमाग में ये अपने दिमाग में एक थॉट ये लेके चले आओ, वो सीख रहा है। या आप अपने मन में ले आओ कि मैं सीख रहा हूँ, तो अपने आप ना चीज़ें क्या होती हैं, आपको बैलेंस कर देती हैं, आपके इमोशंस को बैलेंस करती हैं, जब आप ये थॉट लेके आते हो कि हाँ वो सीख रहा है, ठीक है। समटाइम्स जैसे किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, बोलने में बहुत अच्छा है, बट क्या है कभी कभी उसके अंदर कुछ कमियां होंगी तो कुछ अच्छाइयाँ होंगी। किसी में कुछ अच्छा है, वो बोलने में अच्छा नहीं है। सामने वाले को, उसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो नेचर गिफ्टेड है, एक अलग तरीके की जेलस होती है कि यार ये क्यों मतलब ऐसा कर रहा है। जहाँ ये खड़े हो जाते हैं वहाँ सब इनके पीछे खड़े हो जाते हैं। आप उस जगह पे ये सोचो अपने लिए, ठीक है, वो उनका टैलेंट है, वो उनकी फेट है, वो उनकी किस्मत है। वहाँ पे आपको जज नहीं करना चाहिए। हर इंसान की फेट और किस्मत अलग होती है। शायद उसकी नियति में है कि तभी वो वहाँ तक पहुँचा हुआ है। आपकी नियति वहाँ तक जाने की नहीं होगी, आप लेकिन वहाँ तक सोचने के लिए अपने आप को परेशान कर रहे हो। बात को पकड़ना है इस चीज़ को।
आपकी नियति में वहाँ जाने की, स्टेज पर पहुँचने की शायद नहीं होगी, आप शायद उससे बेहतर कुछ करना बनाना हो, नियति ने आपके लिए सोचा होगा। लेकिन क्योंकि आपके साथ कोई लड़का था, वो आपसे आगे निकल के स्टेज पे पहुँच गया और आप बैठे हुए हो, तो आप उसको लेके जो है मन को अपने उदास कर रहे हो कि यार बताओ वो पहुँच गया, मैं क्यों नहीं पहुँच पाया। तो भाई ये चीज़, ये जो नेचर का, ये भी एक नेचर का एक गिफ्ट है इंसानों को, जेलेसी का। बट इसको बैलेंस इसी तरीके से करना चाहिए कि ठीक है यार, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी ये चीज़ जो मैंने आपको वर्ड बोला ना, सीख रहा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो लाइफ को बहुत सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करती है। तो आप अपने आप को बोलो कि मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं तो मुझे मेरी किस्मत है, जो मेरा नेचर है, प्रकृति ने अगर मुझे इस दुनिया में लाया तो मुझे कहीं ना कहीं तो पहुँचाएगी, और शायद मैं उस चीज़ के लिए बना हुआ हूँ। तो हर इंसान अपने आप में यूनिक है, और वैसे ही हर बच्चा, और ये चीज़ हमें स्कूल में बचपन में सिखाई जाती है। बट क्या होता है ना कि ज़माने की भागम भाग, रश और दुनियादारी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि इंसान जो है वो अपनी रूट्स जो होती है ना, जो बचपन से जो बेसिक्स जो रूट्स होती हैं, जो प्रकृति के जो एक नेचर का रूट्स है, उसको भूल जाता है। फिर ऊपर जाके फिर तमाम तरीके की हमें लाइफस्टाइल की बीमारियां होती हैं, लाइफस्टाइल की दिक्कतें आती हैं। तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखिए, अपने अंदर का बच्चा कभी नहीं मरने दीजिए। तीसरा, हमेशा अपने माइंड में रखिए, हमेशा अपने दिल में बैठाइए कि हाँ मैं सीख रहा हूँ। ये जो सोच है ना सीखने वाली, ये आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देगी, ये मत याद रखना, कभी नहीं होने देगी। कभी आपको, और वो नेचर की एनर्जी आपको हमेशा वाइब्रेंट फील कराएगी अंदर से। और आप हमेशा मानो कि जो भी हो रहा है नेचर की वजह से हो रहा है। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा अगर रिलीजियस वे में बोलूँ, जैसे हमारे हिंदुज़म में एक बात बोली जाती है कि ऊपर वाले की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो बस आप इसी पॉइंट को नोट कर लो कि सब कुछ जो है एक सिस्टमेटिक वे में है। आपको उसी प्रकृति में पैदा किया गया है, उस प्रकृति को गोद में खेलो, उसके साथ एंजॉय करो, उसको एहसास करो, उसको समझने की कोशिश करो। और प्रकृति का मतलब इसमें इंसान भी जुड़ते हैं, ऐसा नहीं कि इंसानों से दूरी बना के आप सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों के बीच कूद रहे हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आप सबके बीच में जाओ, बैठो, देखो, हर तरीके का अनुभव को एक्सपीरियंस करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि तीसरा मैंने देखा बच्चों में ना एक शर्म नहीं होती, मतलब बच्चे की जो मासूमियत होती है वो भाई अलग चीज़ होती है। और वो मासूमियत मैं आपको तभी बता रहा हूँ, मासूमियत तभी आती जब आप नेचर से कनेक्ट रहोगे। आप जहाँ नेचर से दूर हुए, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आपके फेस पे दिखता है, वो मासूमियत खत्म हो जाती है। आप नेचर से कनेक्ट रहो, मासूमियत आपके अंदर रहेगी। आप दूर हो जाओ, देखो मासूमियत खत्म हो जाएगी। आर्टिफिशियल वर्ड क्या होता है ना, वो आपकी जो ऊपरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसको तो वो पॉलिश कर सकता है, बट आपका जो अंदर का साउल है ना उसको पॉलिश नहीं कर पाता आर्टिफिशियल वर्ड। तो होता क्या है, जब आपके आर्टिफिशियल वर्ड से जब आप कनेक्ट रहते हो किसी आर्टिफिशियल चीज़ों से, तो आपके अंदर की मासूमियत खत्म हो जाती है। तभी लोग कहते हैं ना कि यार मासूमियत नहीं है, बड़ी उम्र से बहुत ज़्यादा वो बड़ी दिख रही है, बहुत टेंशन दिख रही है, चेहरा वैसा दिख रहा है, ये लड़का वैसा है, ये जैसे बहुत लड़के स्मोक करते हैं तो उनके चेहरे पे ही मतलब अलग तरीके से मासूमियत खत्म हो जाती है। जबकि नेचर ने आपको दिया है ये गिफ्ट बचपन से, उसको आप तभी, अब वो चीज़ अगर आपके अंदर जिंदा है तो समझ लो आप लाइफ लॉन्ग, मतलब ज़िंदगी आपकी जो है बड़ी सुकून और पीस के साथ होगी। और ये है लाइफ का फंडा। चलो बच्चों के साथ इसीलिए मैं दिन बिताने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। आप लोग भी कभी पार्क वार्क जाओ, बच्चों स्कूल में कोई आपके रिलेटिव के बच्चे हों या आपके खुद के बच्चे होंगे, फंक्शनों में जाओ, एंजॉय करो, टीचर से कम्युनिकेशन करो उनके, और जो बच्चे आपके आसपास सोसाइटी में दिखते हो या कुछ दिखते हो उनसे बात करो। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन बच्चों से, क्योंकि ये आपके लिए समझ लो बेस्ट टीचर हैं। इनसे अच्छा कोई टीचर नहीं हो सकता आपके लिए, समझ लो। बच्चों के बीच में जाओगे, हमेशा भी चीज़ याद रखना, अपने से छोटे से दोस्ती करोगे हमेशा बूस्टअप रहोगे, अपने से बड़े से दोस्ती करोगे उसमें भी बूस्टअप रहोगे, बट इन ए डिफरेंट वे। वो वहाँ पे आपके अलग जो जिम्मेदारियां हैं जीवन की, वो अलग तरीके से वहाँ पे आपको सोच वहाँ विकसित होती है। दोनों का अपना अपना प्रभाव है, बट लॉन्ग टर्म में अगर ज़िंदगी को वो करना है तो बच्चा अपने अंदर का बच्चा जगाए रखिए और बच्चों के साथ घुलते मिलिए, एंजॉय करते रहिए। सो कैसा लगा मेरा व्लॉग, कमेंट और सब्सक्राइब करना भाई, और लाइक करना, शेयर करना अगर अच्छा लगता है, ठीक है, और बताना, ठीक है। चलो अभी तो एक ये मौका मिल रहा, मैं चला जाता हूँ। इसी बीच में बच्चों के साथ रह के सीखने को बहुत मिलता है और ख़ुद भी बहुत प्रफुल्लित अंदर से होता हूँ, गदगद भी होता हूँ कि यार वाकई में सही है। मतलब देख के अच्छा लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है बच्चों कितनी अच्छी तरीके से ग्रोन अप हो रहा है। और हेड्स ऑफ टू LPS टीम एंड लखनऊ पब्लिक स्कूल को मैं हेड्स ऑफ करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को प्रिपरेशन कराया, फंक्शन में सारा सब कुछ चीज़ों को मैनेज किया और बच्चों को रेडी करना, मतलब ये भी एक डेडिकेशन है, बहुत हार्डवर्क है एंड गुड थिंग इस बहुत अच्छी टीम है लखनऊ पब्लिक स्कूल की, हेड्स ऑफ। ठीक है भाई, चलो रखता हूँ मैं, बाय।